وہ سردیوں کی ایک تاریک اور بھیانک رات تھی۔ ہوا سائیں سائیں چل رہی تھی۔ گھر کے صحن میں لگا نیم کا درخت زور زور سے ہل رہا تھا کہ مانو اب گرا۔ یہ رات کے 8 بجے کا وقت تھا، لیکن محسوس ایسا ہو رہا تھا جیسے آدھی رات گزر چکی ہو۔ میں اس زمانے میں سیکنڈ ایئر کا طالب علم تھا، اور ایک مشہور انڈین فلم اس وقت شہر کے تمام سینما گھر میں لگی تھی۔ اس پر اتنا رش تھا کہ ٹکٹ ملنا مشکل تھا۔ ہمارے چچا جو سینما کے بے حد رسیا تھے، نہ معلوم ٹکٹ کہاں سے لے آئے اور کیسے لے آئے، کسی کو کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ دفتر سے آتے ہی انہوں نے اعلان کیا کہ آج ہی سیکنڈ شو میں چلنا ہے۔ اس زمانے میں دوسرا شو رات کے 10:30 بجے شروع ہوتا تھا اور 2 بجے کے قریب ختم ہوتا تھا۔ گرد و غبار اور تیز آندھی والی ہوا کو دیکھ کر ہم سب کے دل بیٹھے جا رہے تھے کہ کہیں بارش نہ ہو جائے اور سینما کا پروگرام دھرا کا درا نہ رہ جائے۔ ہوا کچھ یوں کہ ہوا 9 بجے کے قریب رک گئی، بادل چھٹ گئے اور موسم بہتر ہو گیا۔ گھر سے سینما زیادہ دور نہ تھا، تقریباً 1 میل کے فاصلے پر تھا، لہٰذا کھانا کھا کر ہم سب لوگ پیدل ہی روانہ ہو گئے۔ ابھی تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ چچا نے کہا، جمیل میاں بھیا سے بیت تو لے آؤ، کہیں راستے میں کتے ہمیں تنگ نہ کریں۔ بیت ہمارے ہاتھ میں ہوگا تو الٹی سیدھی مخلوق ہم سے دور ہی رہے گی۔ ان کے کہنے پر جب میں بیت لینے بھیا کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ تمہارے چچا بہت بھلکڑ ہیں، یہ بیت جو میرے باپ کی نشانی ہے وہ تو میں ہرگز دینے کا نہیں۔ میں اور بھیا ابھی یہی باتیں کر رہے تھے کہ چچا خود ہی بیت لینے آ گئے۔ بھیا آپ فکر نہ کریں، بیت واپس آ جائے گی۔ میں نے بھی ہاں میں ہاں ملائی اور وعدہ کیا کہ میں بھی چلتے وقت چچا کو یاد دلا دوں گا، آپ اطمینان رکھیے اور بیت ہمارے حوالے کر دیجئے۔ مجبوراً بھیا نے بیت چچا کے ہاتھ میں تھما دی اور ہم تیزی سے چلتے ہوئے خاندان کے دوسرے افراد سے آ ملے جو ابھی تک مسجد تک ہی پہنچے تھے۔ یہ مسجد ہمارے گھر سے کوئی 200 گز کے فاصلے پر ہوگی۔ اس سے 200 گز کے فاصلے پر ایک اندھا کنواں بھی تھا جو بابو کا کنواں کہلاتا تھا۔ مشہور یہ تھا کہ اس کنویں میں ایک سرکٹی چڑیل رہتی ہے جو اندھیری راتوں میں کبھی نہ کبھی اس کنویں سے باہر نکلتی ہے اور رات گئے تک محلے کے دروازوں پر دستک دیتی ہے۔ کنویں کے پیچھے گوروں کا قبرستان تھا اور اس کے بعد گرجا تھا جس کا بڑا دروازہ ٹھنڈی سڑک پر کھلتا تھا۔ سینما جانے کے لیے بابو کنویں کو پار کر کے گرجا کی دیوار کے برابر ایک پتلی سی سڑک پر سے گزرنا پڑتا تھا۔ پھر ایک پل آتی تھی جو اس تنگ سڑک کو ٹھنڈی سڑک سے ملا دیتی۔ سڑک کے دونوں طرف اونچے اونچے پرانے اور گھنے درخت لگے ہوئے تھے جو بہت ہی خوفناک منظر پیش کیا کرتے تھے۔ جب ہم راستہ طے کر کے ٹھنڈی سڑک پر آئے تو محسوس ہوا کہ بہت دیر ہو گئی ہے۔ گھنے درختوں کی وجہ سے چاند کی ہلکی پھلکی روشنی بھی مدھم ہو گئی تھی۔ ہم سب کی رفتار تیز ہو گئی۔ آگے 100 گز کے فاصلے پر سیدھے ہاتھ کی طرف ایک سکول بھی واقع تھا اور اس کے سامنے ایک میدان جو سڑک کی سطح سے تقریباً 8 یا 9 فٹ نچائی میں تھا۔ یہ نیچا علاقہ ڈگی کے نام سے مشہور تھا۔ برسات ہوتی تو یہ میدان تالاب بن جاتا اور گرمیاں آتی تو گھاس کا کتا یا ایک ٹکڑا بن جاتا تھا جہاں پہ بہت سارے جانور اکثر چرا کرتے تھے۔ اس کے جنوب میں کچھ کچے پکے مکانات تھے جن میں گھوسی اور گوجر لوگ رہتے تھے۔ ان مکانوں میں کہیں کہیں روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ گرجا سے بیگم پل تک کا سڑک بالکل سیدھا تھا۔ اسکول کے بعد سے 2 فرلانگ کے فاصلے پر بجلی کے کھمبے لگے ہوئے تھے۔ بیگم پل پر روشنی زیادہ تھی۔ ایک تو یہاں کئی دکانیں تھیں جن پر گیس کی لالٹینیں جل رہی تھیں اور دوسرے اس پر واقع 2 سینما تھے جن میں سے ایک اس وقت شہر کا مشہور سینما تھا۔ جب ہم سینما کی 4 دیواری میں داخل ہوئے تو بہت بھیڑ تھی۔ پہلا شو ختم ہو چکا تھا اور دوسرا شو شروع ہونے والا تھا۔ ہم جلدی سے ٹکٹ دے کر اندر داخل ہو گئے اور اپنی اپنی سیٹوں پر جا برا جمان ہوئے۔ سب سے آخری لائن میں ہماری سیٹیں تھیں اور آخری سیٹ بالکل دیوار سے ملی ہوئی تھی۔ چچا اسی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ سینما ختم ہوا تو رات کا 1:15 بج چکا تھا۔ کبھی ہم جمائیاں لیتے اور کبھی تیز اور لڑکھڑاتے قدموں سے ہم گھر پہنچے۔ یہاں پہنچ کر چچا کو یاد آیا کہ وہ بیت جو بھیا سے لیا تھا وہ تو ہم سینما میں ہی بھول آئے ہیں۔ اوہو، غضب ہو گیا۔ ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ انہوں نے التجا بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہا، جمیل میاں
जल्दी से साइकिल पर चले जाओ और बैद ले आओ। एक तो चचा का रोब, फिर उनका ये एहसान कि उन्होंने हमें सिनेमा दिखाया, और दूसरे ये कि बैद वापस लाने की जिम्मेदारी मेरी ही थी। मैंने अच्छा कहा और जल्दी से जीने के नीचे खड़ी साइकिल की तरफ बढ़ा। मैंने अपने भाइयों में से एक से कहा कि वो भी मेरे साथ चलें, मगर वो निहायत ही बेमुरवती बरतते हुए इनकार करके अपने कमरे में चले गए और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने साइकिल उठाई, मगर जैसे ही उस पर सवार हुआ मुझे महसूस हुआ कि उसका अगला पहिया ज़मीन से लग रहा है। जब मैंने ज़रा गौर किया तो क्या देखता हूँ कि पहिए में हवा नहीं। मैंने गुस्से में आकर साइकिल को वहीं पटका और पैदल निकल भागा। मस्जिद, बाबू का कुआं, गिरजा की दीवार, ठंडी सड़क, बेगम का पुल, आहिस्ता आहिस्ता मैं सब क्रॉस करता गया। आखिरकार मैं सिनेमा जा पहुंचा। मैनेजर साहब अभी मौजूद थे। मैंने उनसे कहा कि वो चचा को जानते हैं। एक आदमी उन्होंने मेरे साथ कर दिया और मैं अंदर की तरफ चला गया और उस सीट की तरफ बढ़ा जहां चचा बैठे थे। बैद दीवार से लगी तनहा खड़ी थी। इसे देखकर मेरे दम में दम आया। बैद उठाकर मैं सिनेमा से बाहर आया और वापसी के लिए कदम बढ़ाने लगा। जो ही मैंने पहला कदम उठाया, हवा तेज हो गई। चारों तरफ हू का आलम था। ना आदम था, ना आदमजाद। डिग्गी यानी मैदान के करीब जब मैं पहुंचा तो कच्चे मकानों में से ढोलक और नाचने की आवाजें आ रही थी। मैं आगे चला और स्कूल के करीब आ गया। यहाँ बिजली के खंभे खत्म हो जाते थे और तारीकी बढ़ने लगती थी। मुझे यूं लगा जैसे मैं किसी सुरंग से गुजर रहा हूँ। उस वक्त अंधेरा घुप हो रहा था। मेरे कदमों की रफ्तार तेज हो गई थी। मैं चाहता था कि यह फासला जिस कदर जल्दी हो तय कर जाऊं। रात की इस गहरी तारीकी में गुजरते हुए मुझे हर आवाज खौफजदा कर रही थी, जो इस लंबी चौड़ी दुनिया में हवा के जुल्म के खिलाफ उठ रही थी। अभी मैं थोड़ी ही दूर चला हूंगा कि मैंने महसूस किया कि घुंघरों की सी आवाज मेरे पीछे से आ रही है। ओ खुदा! छन छन छन। मैं सुन के हैरान हो गया। ये कैसी आवाज थी? जैसे घुंघरू किसी पालतू जानवर के पैरों में बंधे हुए हों। इसके चलने से छन छन की आवाज पैदा हो रही थी। मैंने मुड़कर देखा तो एक बकरी जैसा जानवर जो मुझसे चंद गज के फासले पर था, वो मेरे पीछे पीछे चला आ रहा था। उसे देखकर मेरी रफ्तार खुद ब खुद तेज हो गई। जैसे ही मैंने रफ्तार तेज की तो उस बकरी नुमा जानवर ने भी अपनी रफ्तार तेज कर दी। मैं ये समझा शायद डिग्गी में रहने वाले लोगों में से किसी की बकरी होगी जो खुल गई है और चलते चलते यहां सड़क पर आ पहुंची है। अब मैंने महसूस किया कि छन छन की आवाज मेरे ज्यादा करीब आ गई थी। उस वक्त मेरा डर के मारे बुरा हाल था। एक एक कदम 100 मन का हो गया था, मानो कि जमीन से उठता ही ना था। मैं अपने ख्याल में बहुत तेज चल रहा था। डिग्गी से पुल का फासला जो पलक झपकते में ही तय हो जाता था, अब मीलों का फासला मालूम हो रहा था। मैंने अपनी रफ्तार को और तेज कर दिया, लेकिन वो बकरी नुमा जानवर अब भी मेरे पीछे ही लगा था। मुझे महसूस हुआ कि ये आवाज अब बहुत करीब हो गई है। मैं जल्दी से सड़क के किनारे हो गया और आयतल कुर्सी का विद करने लगा। आयतल कुर्सी तो मुझे याद थी, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा था। उसके बावजूद भी मुझे पढ़ने में दुश्वारी हो रही थी। बदहवासी का आलम था। चारों तरफ सन्नाटा, तारीक रात और साएं साएं करती हवा, पीपल के पत्तों का भयानक शोर। मेरा तो जैसे सांस ही घुट रहा था और डर के मारे ऐसे लगता था जैसे अभी मेरा दम निकल जाएगा। मेरी टांगें लरज रही थीं और कदम दो दो मन के हो गए थे। अभी मैं कच्चे में 2-4 कदम चला हूंगा कि क्या देखता हूं बकरी नुमा जानवर जू जू की आवाज के साथ हवा में उड़ा और मेरे सर पे से गुजरता हुआ छन से सड़क पर उतरा। अब वो मेरे सामने था। मैं कच्चे में चल रहा था और वो सड़क पर चलता हुआ मेरी तरफ बढ़ रहा था। फिर मैंने क्या देखा कि उसका रंग रात की तरह स्याह है, लंबे लंबे सींग हैं और वो बछड़े के बराबर एक बकरी जैसा जानवर है। उसकी आंखें बिल्ली की आंखों की तरह अंधेरे में चमक रही थी। वो बराबर मेरी तरफ बढ़ रहा था और छन छन की वो भयानक आवाज मानो मेरी जान ले रही थी। मैं ठहर गया। वो चलता रहा और वो मुझसे चंद गज के फासले पर रह गया तो फिर से उसने शोर किया। इसके साथ ही वो दोबारा हवा में बुलंद हुआ और फिर मेरे सर के ऊपर से गुजर गया। गर्ज ये कि मामूली सा रास्ता मेरे लिए मीलों की मुसाफत बन गया था। अब वो बकरी नुमा जानवर इतना नंडर और दिलेर हुआ कि बार बार मेरे सामने आ रहा था और मुझे डराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मैं खुदा को याद करता हुआ गिरता पड़ता घर की तरफ रवां दवां था।
खुदा खुदा करके उस जानवर से जान छूटी। मैं पुल के करीब आ पहुंचा। क्या देखता हूं कि पुल के करीब एक सरकटी औरत सफेद कफन में मलबूस मेरी तरफ बढ़ती हुई चली आ रही है। उसके कफन पर सारा खून था और उसके हाथ लंबे लंबे और नाखून तो उनसे भी लंबे थे। ये मंजर देखकर मेरी चीख निकल गई। मैं चीखता जा रहा था और तेजी से भागता जा रहा था। मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरा दम निकल गया हो। मैं जमीन पर ऊंधे मुंह गिरा पड़ा था, लेकिन फिर मैंने हिम्मत करके पीछे की तरफ देखा तो मुझे कुछ भी नजर ना आया। मैंने खुदा का नाम लिया और पूरी ताकत लगाकर खड़ा हुआ। मेरा रुख फिर अपने घर की तरफ था। खैर, गिरते पड़ते मैं मस्जिद के करीब पहुंच गया। मस्जिद से मैदान और फिर घर तक। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला और अंदर से कुंडी लगाई। अपने कमरे में जा पहुंचा और लिहाफ में दुबक गया। जैसा कि पहले जमाने के मकानों में होता था, मेरे कमरे का दरवाजा घर की बाहर की तरफ खुलता था। हरे रंग का छोटा सा बल्ब कमरे में रोशन रहता था। सामने मेज पर पड़ी किताबें और कॉलेज की नोटबुकें रखी हुई थी, मगर मुझे कुछ भी दिखाई न दे रहा था। मेरा सांस फूल रहा था। जिस्म का सारा खून खुश्क हो गया था। मैंने लिहाफ को सर तक तान लिया। मैं इस वक्त खौफ से लरज रहा था। देर इसी तरह मुझे डरावने ख्यालात परेशान करते रहे। फिर ना मालूम कब मैं डरते डरते सो गया। अभी सोए हुए मुझे कुछ देर ही हुई होगी कि अचानक मेज पर से एक किताब गिरने और कुर्सी के खींचे जाने की आवाज मेरे कानों में आ पड़ी। मैंने लिहाफ मुंह पर से उतारा और देखा कि एक लंबे कद की खातून गहरे सुर्ख रंग की साड़ी पहने मेरी तरफ पीठ किए हुए मेज की तरफ झुकी हुई है और मेरी किताबों के वर्क उलट पलट रही थी। मैं खौफ से लरज गया। या अल्लाह, ये कौन है? इस कद और जिस्म की औरत तो कोई भी हमारे खानदान में नहीं, और फिर भी ये रात के इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रही है? वो कुछ देर इसी तरह झुकी हुई खड़ी रही। फिर उसने पेंसिल से कागज पर कुछ लिखा और उसके बाद कागज को फाड़ दिया। फिर वो अचानक मेरी तरफ मुड़ी। उसे देखकर तो मेरा दम ही निकल गया। बैल की सी आंखें, जरूरत से ज्यादा चौड़ी पेशानी और बहुत ही लंबी तोते जैसी नाक जो आगे को मुड़ी हुई थी। उसने शायद महसूस कर लिया कि लिहाफ में से मैं उसे छुप के देख रहा हूं। वो मेरे पलंग के बहुत करीब आई और किसी बेजान भूत की तरह बेहिस्सो हरकत मेरे पास खड़ी हो गई। बहुत देर तक वो इसी तरह खड़ी रही और मुझे देखती रही। मैं दम साधे लिहाफ में चुपचाप लेटा रहा। ना आवाज निकाल सकता था और ना किसी को मदद के लिए बुला सकता था। कुछ देर बाद उसने हरकत की और मेज की तरफ गई। सामने लगी खौंटी से बैद को निकालकर घुमाने लगी। घुमाते घुमाते वो मेरे पलंग की तरफ दोबारा वापस आई। उसके चलने से छन छन की आवाज कमरे में बहुत ही खौफनाक माहौल पैदा कर रही थी। मानो मेरे बदन में जान ही ना थी और ना ही मेरी जुबान काम कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये आज मेरी जान ले लेगी। वो इसी तरह बहुत देर तक बुत बनी मेरे पलंग से लगी खड़ी रही। फिर उसने बैद की नोक से मेरे लिहाफ को उतारने की कोशिश की। मुझे यूं मालूम हो रहा था कि अब मेरा दम निकला। मैंने लिहाफ को और जोर से दबाया। कुछ देर तक वो यही करती रही, जैसे मेरा तमाशा बना रही हो। जैसे ही वो लिहाफ को उतारने की कोशिश करती, मैं पूरी कुव्वत से लिहाफ को दबा लेता। मैं सोच रहा था, या अल्लाह, सुबह कब होगी और ये भयानक औरत मेरे कमरे से कब जाएगी। बाहर तेज हवा चल रही थी। सहन में खड़ा हुआ नीम हवा की साएं साएं और खौफ को मजीद बढ़ा रहा था। छत पर दो बिल्लियां लड़ रही थीं, जिनकी डरावनी आवाज मुझे मारे जा रही थी। मैंने महसूस किया कि शायद आज ये मेरी जिंदगी की आखिरी रात है। कोई भी तो वहां ऐसा न था जो मेरी मदद को आ सके। या अल्लाह, तू ही मुझे इस बला से निजात दे। मैंने दिल ही दिल में हिसाब लगाया कि 1:15 बजे सिनेमा खत्म हुआ। 1:45 हम घर पहुंचे। फिर मैं बैद लेने सिनेमा गया और फिर उसके बाद ये वाकया पेश आया। गोया 3 बजे मैं घर आ गया हूँगा और कम से कम 1-1.5 घंटे से ये ड्रामा हो रहा था। बस करीब है फजर की अजान हो जाए, लेकिन अभी तक कोई मुर्गा ना बोला था और ना ही मुअज्जिन ने अजान दी। मैं भी यही सोच रहा था कि छत पर बिल्लियों की लड़ाई तेज हो गई। वो औरत फिर मेरी तरफ लपकी। मेरे जहन में बार बार ये सवाल आ रहा था कि ये मुसीबत मेरे गले कैसी पड़ी। भला मैंने इसका क्या बिगाड़ा है जो ये आज मेरी जान लेने के दरपे है। उसने दोबारा वही हरकत शुरू की। मेरे मुंह से लिपटा हुआ लिहाफ उतारने लगी। उधर वो जोर लगाती
और इधर मैं पूरी ताकत से लिहाफ को दबाता। मैंने महसूस किया कि उसकी उंगलियों की पकड़ बहुत सख्त हो गई थी। लंबे लंबे नाखून लिहाफ में गड़ गए। इस बार उसने पूरी कोशिश की और लिहाफ को मेरे मुंह पर से उतार दिया। इसी कोशिश में झर से लिहाफ के फटने की आवाज मेरे कानों में आई और मेरा मुंह खुला का खुला रह गया और ना चाहते हुए मेरे मुंह से एक खौफनाक चीख निकल गई। कुछ ही देर बाद वो मेरे सिरहाने पर बैठ गई और मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगी, मानो मेरे दिल को बहला रही हो और वो मुझसे कहना चाहती हो कि डरो नहीं, बस मैं यहां तुम्हारे पास रहूंगी। जब वो उंगलियां फेरती तो मेरे सर में मिर्चें सी लगने लगती। एक बार तो उसने इतनी जोर से नाखून गड़ाए कि मैंने महसूस किया कि मेरे सर की सारी खाल उतर गई है। कभी वो जमीन पर पैर मारती तो वही छन छन की आवाज मेरे कानों में आने लगती। पता नहीं मेरे घर वाले कहाँ मर गए। मैं दिल ही दिल में उनको बद्दुआएं दे रहा था। आज कोई भी ना उठा, ना ही किसी को प्यास लगी। रह रहकर मुझे ये भी ख्याल आता था कि शायद आज सुबह नहीं होगी। वो उसी तरह मेरे सर में उंगलियां चलाती रही और मैं चुपचाप उसकी उंगलियों से पैदा होने वाली तकलीफ को बर्दाश्त करता रहा कि इतने में आजान की सदा बुलंद हुई। आजान की आवाज सुनते ही वो उठी। चचा वाला बैद उसके हाथ में था। उसने दरवाजे का रुख किया, कुंडी खोली और दरवाजा धड़ से बंद किया और बाहर की जानिब को निकल गई। मैं उसी तरह पलंग पर पड़ा रहा। मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। पलंग से उठकर मैं अपने कमरे की कुंडी लगाने की भी हिम्मत न रखता था। कुछ देर बाद दूध वाले ने दरवाजा खटखटाया। मैं डरते डरते दरवाजे की तरफ गया और जल्दी से कुंडी हटाई, लेकिन डर कर फिर मैंने दरवाजा न खोला। कौन है? मैंने सवाल किया। आगे से दूध वाले का जवाब आया, भैया मैं शबे राती हूं, बर्तन ले और दूध ले जाओ। मैं गिरता पड़ता बर्तन लेने किचन में चला गया और दूध लेकर वापस पलंग पर आकर बैठ गया। मैंने देखा कि कोई चीज मेरे गालों पर जम गई थी। जब मैंने अपने चेहरे पर हाथ फेरा तो वो खून था जो मेरे सर से बहकर गालों तक आ गया था। लिहाफ देखा तो वो फटा हुआ था। आईना उठाया तो सर में एक जख्म था और वो बैद गायब थी। मेरी नोटबुक के 2 कागज फटे हुए थे और कई सफहात पर करम कांटे से बने हुए थे। और फिर ये हुआ कि मेरे सर के बाल तेजी से गिरने लगे और वो जख्म का निशान आज तक मेरे सर में मौजूद है। मैं बहुत दिन तक सोचता रहा कि आखिर वो चुड़ैल मुझसे क्या चाहती थी, लेकिन ये मुअम्मा कभी हल ना हो सका। और पीरों फकीरों से मालूम करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि उस रात जब हम सिनेमा जा रहे थे तो रास्ते में उसके बच्चे कहीं खेल रहे थे और मैंने गलती से उसके बच्चे के सर पर पांव रख दिया था। उस वक्त उसकी ये चुड़ैल माँ दरख्तों की ऊट से मुझे देख रही थी। शायद वो अपने बच्चे का बदला लेने ही मेरे पास आई थी, क्योंकि उसने मेरे अलावा और किसी के कमरे का रुख ना किया था। मैं काफी अरसा बीमार रहा, हकीमों और डॉक्टरों को भी दिखाया, मगर कुछ इफाका ना हुआ। लेकिन एक दरवेश बुजुर्ग के दिए गए तावीज को मैंने बार बार पानी में डालकर पिया और बराबर आयतल कुर्सी का विर्द जारी रखा। चंद दिन बाद हमने एक जानवर लिया और उसको ज़िबा करके उसका खून दरख्तों के झुंड में डाल आए, मानो ये उनकी नजर थी। तब कहीं जाकर मेरी जान छूटी। आज भी उसके नाखूनों के निशान मेरे सर और मेरे गालों पर मौजूद हैं और मैं उस वाक़ये को याद करके डरता हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। चैनल पर आने वाले नए दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।